So just with few hours left now for the mega consecration ceremony or the Pran Pratishtha of Ram Lalla at the newly constructed Ram Temple. Preparations have been underway in full swing. You can see the atmosphere around me. Tomorrow, of course, the day begins at 10 a.m. with a Mangal Dhwani reverberating in the air of Ayodhya. Basically, what that will be is 50 musical instruments coming together from different states to create a very, very auspicious chant for nearly 2 hours from 10 a.m. to 12 in the afternoon. Prime Minister Modi then will arrive at the Ram Temple for the Pran Pratishtha rituals, which will in fact begin at 12:05 p.m. But the Shubh Muhurat, the auspicious moment, is at 12:20. The auspicious Muhurat, in fact, is of only 84 holy seconds. This will be followed by Prime Minister Modi's gathering that he will be addressing. He will in fact be inside the temple complex when he addresses all the VVIP dignitaries that are present for the ceremony, and in the end the Prime Minister will offer prayers at the Lord Shiva temple at Kuber Tila inside the Mandir complex. It's a restored Shiva temple. The consecration ceremony will start with the bathing of Ram Lalla's idol in holy waters, and his eyes will be revealed to the world because the blindfold will be taken off. Prime Minister Modi, in fact, will then apply kajal on Ram Lalla's eyes using a golden pencil. Priests will chant mantras to invite Lord Ram to reside in the idol. After all these rituals, Ram Lalla's idol will be worshipped for the first time and bhog will be offered. Some of the ceremonies included to cover the Bhagwan, that is the idol, with flowers, which means that I was asked to climb up to the podium, and in the process of decorating him with the flowers, to touch him, hands, chest, feet. This is something that I would never be able to describe in words. पूरी अयोध्या सज चुकी है, संवर चुकी है। जिस कल्पना को साकार 500 वर्ष लग गए करने में, और आज हम लोग के सामने में संभव हो पाया, नहीं लग रहा था कि हम लोग के सामने संभव हो पाता। अयोध्या के वासी, अयोध्या के साधु संत, इसके अलावा जो कल मैं घूम घूम कर देखा कि पूरी अयोध्या राममय हुई है एकदम। मैं तो इतना ही महसूस करता हूं कि सभी जनों ने इस प्रोग्राम को अपना माना। इतना ही नहीं, राम जी को, हनुमान जी को उन्होंने श्रद्धा से स्वीकारा। ये वो आ नहीं रही, उनकी श्रद्धा उनको खींच करके ला रही है। यह राम कृपा, हनुमत इष्ट की कृपा ही उनको यहाँ तक खींच करके ला पा रही है, नहीं तो शक्य नहीं था। माहौल अविस्मरणीय क्या, युगों युगों तक आत्मा में, अरे यार, मरने के बाद में भी शायद दिल में लेकर के जाएंगे। My colleague Samar Srivastava is now joining me live from the Lata Chowk in Ayodhya. Just looking at the number of devotees and tourists around us, Samar, you wouldn't believe that this is 10 p.m. in the night. Well, exactly, for me it's 10 p.m. in the night, but atmosphere out here seems like it's 6 or 7 in the evening, and that's how we know Ayodhya now. The atmosphere out here in the temple town is just electrifying. Right behind me is the majestic Lata Veena, and if you see the visuals in the night, you can clearly see the atmosphere out here is quite mesmerizing. And I have been also joined by a lot of people of Ayodhya and also the outsiders who have come here to witness the history in the making. That means the consecration ceremony in the presence of Prime Minister of India, Narendra Modi. I'll speak to many of them who are standing here. Many have also got Ramcharitmanas in their hands. So let's begin. आप लोग इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? 10 बजे का समय है और आप लोग यहाँ पर हैं। बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। अच्छा, राजस्थान से। हाँ, मैं इस
प्राण प्रतिष्ठा को नमन करता हूँ, मोदी जी को भी नमन करता हूँ और उन कार सेवकों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने ये दिन दिखाया हमको 1992 में जिन्होंने बलिदान दिया। उन संतों को भी नमन करता हूँ। और मैं उस गांव से हूँ जो इस केस में एक्यूज नंबर 1 आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज, मैं उस गांव से हूँ, मैं उनको भी नमन करता हूँ। आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ और आज कल मैं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हूँगा। बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो धर्म का सैलाब है, जहाँ पर इतने श्रद्धालु आए हुए हैं, ये परमात्मा से साक्षात्कार अभी तक किसी का नहीं हुआ। सभी लोग जैसे ही देखते थे हृदय में एक दुख होता था कि हमारे परमात्मा इस प्रकार से हैं, लेकिन आज ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कृपा से और योगी जी की कृपा से ये सब संभव हुआ। कितने पूर्वज मर गए इसी अभिलाषा में, और पूर्वज ही नहीं अपितु दशरथ जी महाराज भी मर गए कि हमारे पुत्र राम राजा बने, लेकिन ऐसा भी उनके भी समय में नहीं हुआ। आज हम लोगों के समय में हो रहा है, इसलिए हम धन और अयोध्या की बड़ाई कौन कर सकता? भगवान राम तो स्वयं अयोध्या की बड़ाई करे गए हैं। यद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवध सरिस प्रिय सो नहीं, यह प्रसंग जाने को। तो वह वैकुंठ भी भगवान को इतना प्रिय नहीं है जितना कि अयोध्या प्रिय हैं। और वाल्मीकि जी ने कहा है, रामायण देखिए यहाँ पर इनके पास है, ये भी दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पर लोग 10 बजे का समय है रात का, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट दे हैव गॉट दैट रामचरितमानस विद देम। आप क्या कहेंगे कि ये लेकर आप आए हैं? सर ये जो है ना गीता, मतलब जितना सनातन धर्म के लोग मानने वाले हैं उन सभी को बच्चों के हाथ में पहले गीता जाना चाहिए। गीता के किताब पढ़ेंगे तो बच्चों में संस्कार का विकास होगा। जब संस्कार सही रहेगा तो बच्चे पढ़कर बड़े अधिकारी बनेंगे तो घूस नहीं लेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। अगर नेता बनेंगे तो देश को विकास। किताबें आप फ्री में बांट रहे हैं? फ्री में नहीं बांट रहे हैं हम। एक संस्था थी जो बांट रही थी, मैंने देखा बांट रही थी, लेकिन मेरा आपको ही मिली है। हाँ मिली। तो देखिए और भी लोग हैं, आप लोग क्या कहेंगे? कितनी खुशी। कहाँ से आए आप? बिहार से। बिहार से आ गए? बिहार से, हाँ। एमपी से आए? राजस्थान। अरे असम से आए भाई। यहाँ पर क्या खूबसूरती देख रहे हैं अयोध्या में? इतना खूबसूरती है। मैं 92 में आया था, तब तो धासा था, ठीक है। मैं 92 में आके दर्शन करके जब गया था, उसका 1 महीना बाद वो धासा तोड़ा गया था। मैं आज ही आया हूँ गुवाहाटी से, मतलब इतना कष्ट करके आया हूँ। वो लखनऊ में उतरा, लखनऊ से यहाँ तक का बस भी नहीं था, ट्रेन भी नहीं था। किसी तरह से प्रभु ने कृपा किया, तो कृपा से मैं किसी से लिफ्ट लेके चला आया यहाँ तक। लिफ्ट लेके आए? हाँ जी। मैं इतना खुश हूँ, जो 32 साल 33 साल पहले जैसा देखा था जी, जो देखा था ना, आज बिल्कुल हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल्ले ना झूलाएंगे, राम झूलेंगे तो पल्ले ना झूलाएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग। कविता लिखी है, सुनाइए। आजा राम तेरे इंतजार में खड़ा हूँ, माता सबरी के भांति तेरे प्यार में पड़ा हूँ। उठ सूट कर राम तेरे नाम जपते हैं, राहों में फूल बिछा कर बेर चक चक के रखते हैं। तू नहीं आया तो प्राण त्याग दूंगा, दिन रात तेरा लगाता नारा हूँ। माता सब्र के भांति तेरे प्यार में पड़ा हूँ, आजा राम तेरा इंतजार में खड़ा हूँ। You can clearly see that Jai Siya Ram, and this is something very electrifying. It's 10:15 p.m. and you can clearly assume still Ayodhya is singing like it's evening.